Hello, friends. Today we will start chapter number 17 of our social studies portion. So, chapter deals with economic problems and challenges, and there are two problems: poverty and unemployment, right? About which we are going to discuss in this chapter. I'll speak in English and Hindi, a mixture of both these languages, right? तो सी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत सारे सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है. जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इंडिया का हर प्रॉब्लम का वो जड़ यही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन. दूसरा प्राइस राइज, ब्लैक मनी, इसके बारे में हम आगे का चैप्टर में बात करेंगे. देन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये लेसन में हम बात करने वाले, स्टारवेशन, करप्शन, टेररिज्म, इसके बारे में हम लेसन नंबर 21 में बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ ऑल दिस, राइट? तो सिर्फ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन इंक्रीज, दे आर मेजर प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम है. इनफैक्ट पॉपुलेशन इंक्रीज लीड्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो लेट अस टॉक ऑफ पॉवर्टी फर्स्ट. तो ये वीडियो में हम सिर्फ पॉवर्टी क्या है, who are people living below poverty line, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे. ओके, एंड who can be considered to be poor. तो तीन टॉपिक ये वीडियो में हम करेंगे, बेसिक्स करेंगे. तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन पॉवर्टी. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड. डिप्राइव्ड मीन्स डोंट गेट. They don't get. So we can write a large number of people don't get their basic and essential requirements of life: food, clothes, shelter, education, health. See, ये पांच चीज, 5 things: रोटी, कपड़ा, मकान, education, पढ़ाई, and स्वास्थ्य, health. These 5 are the basic. They are the basic requirements. They are essential requirements. जरूरी चीजें. इसके बिना डेवलपमेंट होता ही नहीं कभी भी. They are foundation. ये होगा, उसके बारे में आगे जाएंगे. So such a situation is known as comprehensive poverty. Right? Comprehensive means full-fledged poverty. And people living in such a condition in the society are called poor. So who are poor? People who do not get basic necessities of life, like food, clothing, shelter, education, and health services, are considered to be poor. So, let's talk of a new topic called people living below poverty line. Right? See, poverty is a qualitative concept. Qualitative means it is different from person to person. It depends on the quality of life. Right? It's a qualitative thing. You cannot quantify it. आप उसको number नहीं दे सकते. But that's a big problem. How can we decide whether a person is poor or not? Right? Because if it varies from person to person, society to society, it will be very hard to quantify. And unless you cannot quantify something, you cannot work on it. See, government, जब तक उनके पास आंकड़ा नहीं होगा, फिगर नहीं आएंगे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक गवर्नमेंट डिसीजन कैसा ले पाएगा? So, to take any decision, we rely on statistical information. Okay? So, basically, what we do is, in this case, poverty measure karna, if poverty is a qualitative concept, you cannot measure it properly, तो हम एक लाइन फिक्स कर लेते हैं, यानी इनकम लाइन फिक्स कर देते. पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी को लाइन कोई अलग लाइन नहीं है. It is nothing but, I'll write in a new color, it is nothing but an income level. It's an income level, right? आपकी इनकम, किसी की इनकम, वो लेवल जो है उससे कम है, then you are said to be living below poverty line, यानी you are BPL. If your income level is above that level, you are not BPL, or you are above BPL. Then you are above BPL, right? So एक income level fix कर दिया. That income level is called poverty line.
the minimum income which is required, let's see, that to sustain your life or to sustain your basic requirement, that is called poverty line. Right? See, common features, if we talk of common features of people living below poverty line are as follows. Right? Now see, यानी देखो पॉवर्टी लाइन क्या है, एक इनकम लेवल है. प्लीज रिमेंबर दिस, पॉवर्टी लाइन इज एन इनकम लेवल. आपकी फैमिली की इनकम, आपकी पर्सनल इनकम वो लेवल से कम है तो आप बीपीएल फैमिली है, यू आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. एंड इफ योर इनकम इज अबाउ दैट थिंग, यू आर लिविंग अबाउ पॉवर्टी लाइन. सो ये मोस्ट पुअर पीपल, और हम उसको एब्सोल्युटली पुअर बोलते या एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते. तो ऐसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले लोग, ऑल ऑफ देम आर बीपीएल, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. राइट? सी, बीपीएल इज बाप का पैसे लहर, वो नहीं है, वो अलग है. ये बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीब लोग हैं वो. सो फीचर देखिए, पर्सन इज नॉट एबल टू गेट 2 meals अ डे. देखो, दिन में 2 बार भी खाना उसको ठीक से नहीं मिलेगा. वो रोटी वो खा लेगा, दाल खा लेगा, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील, बैलेंस डाइट उसको नहीं मिलेगा. ही सफर्स फ्रॉम अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस. ड्वेलिंग मीन्स हाउस. देखो, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हाउस, राइट, सब नहीं है. दे आर फोर्स टू लिव इन शेबी और स्लम एरियाज. झुपड़पट्टी में रहने का उनको रहना पड़ेगा. राइट? इनकम इज लेस. राइट? इनकम इज लेस देन द डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम. बहुत कम इनकम है. उनका लाइफ स्पान भी बहुत लेस है. जैसे हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रहे ना उनको, तो इट इज लेस देन द नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इफ इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 years है, तो उनका लाइफ स्पान, एवरेज लाइफ स्पान नेशनल एवरेज लाइफ से भी कम होगा. दे आर इलिटरेट जनरली. हर बार नहीं, लेकिन जनरली दे आर इलिटरेट, यानी एजुकेशन की कमी है. दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, यानी माल न्यूट्रिशन के कारण. माल न्यूट्रिशन के कारण उनको काफी डिजीजेस होते हैं. Then children who have taken up responsibility for looking after family at the age when they are supposed to study, यानी इसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं. तो उनके सोसाइटी में चाइल्ड लेबर भी प्रचलित होगा. बच्चों को काम पे लगा देंगे, फैमिली की इनकम ही नहीं है तो बच्चों को काम पे भेज दिया. एंड डेथ रेट बहुत हाई है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. सी, हेल्थ खराब होगा, डिजीज से सफर करेंगे तो उनका मृत्यु दर भी काफ़ी बड़ा होने वाला है. ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? राइट? सी, द एफर्ट्स क्या है, व्हाट एफर्ट्स हैव द गवर्नमेंट डन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of people living below poverty line. So let me take a new color to make it more interesting. तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट लिए, देखो गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है. सो सी, इनकम net of such people is very less, right? Income is very less. Okay? In city also as well as in villages. तो ऐसे फैमिली को हम अंत्योदय बोलते. अंत्योदय, अंत्योदय और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. राइट? सी, अंतिम आदमी का उदय करना, अंत्योदय. गवर्नमेंट की एम होगा कि ऐसे लोगों को जो सोसाइटी के सबसे नीचे है उनको हेल्प करना. सो आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज, देखो आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेस ऑफ राशन कार्ड. राइट? राशन कार्ड उनको दे दिया है. बीपीएल वाले को अलग से राशन कार्ड है. देयर आर 2 टाइप ऑफ राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड एंड एपीएल राशन कार्ड. ओके? और ये राशन की शॉप्स है ना, उनको फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं, राशन शॉप्स. और एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन ऑफ सच फैमिलीज. उनको कई आइटम फ्री मिलते हैं और कुछ आइटम एट वेरी लो प्राइस. तो ये अंत्योदय फैमिलीज को
बहुत सस्ते में उनको कुछ ये अनाज, ये बेसिक एसेंशियल चीज़ मिलता है, कुछ चीज़ फ्री मिलता है और कुछ चीज़ उनको बहुत सस्ते में, बहुत यानी नॉमिनल प्राइसेस में उनको मिलता है। इससे क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा आने का ट्राई किया है। बिकॉज सी आप देख सकते हैं कि ये पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन का, आप देखो हेल्थ का प्रॉब्लम यहाँ पे, राइट, देन डिजीज का प्रॉब्लम भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, डेथ रेट भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बच्चों को खाना मिलेगा नेट या नॉर्मल खाना मिलेगा उनको, तो वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वो काम पे क्यों भेजे, राइट। तो खाना देने से उनका काफ़ी उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा, राइट। यू सी, एक्सेप्ट उनका क्लोथ्स, एक्सेप्ट या ड्वेलिंग, एक्सेप्ट एजुकेशन, खाना देने से उनका ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले WHO ने उसको प्रोपाउंड किया था, उनको लाया था। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यही कॉन्सेप्ट से वो पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने का कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए थे। देयर आर सम फैक्टर्स आर कंसिडर्ड विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड। देखो पॉवर्टी लाइन कैसे गिनते हैं, तो सम फैक्टर्स भी कंसिडर, लाइक कितना खर्चा करते खाने पे, कितना खर्चा करते क्लोथिंग पे, एकोमोडेशन में खर्चा कितना होता है, एजुकेशन में खर्चा कितना होता है, हेल्थ पे खर्चा कितना होता है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे खर्चा कितना फैमिली का, इलेक्ट्रिसिटी पे, सैनिटेशन पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पे, और उनका इनकम एज वेल एज उनका कैलोरी इनटेक। मेन ये भी है ना कि कितना खाना वो खाते हैं, जैसे उनको कैलोरी मिलता है, उनका कैलोरी का इनटेक कितना है, और एक्चुअली कैलोरी इनटेक के बेस पे ही पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं। सो ऑन द बेस ऑफ दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स को बेस पे अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड, और दैट इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। हाँ, ये कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट विल चेंज समय के साथ, लोकेशन के साथ, एंड इवन सर्कमस्टेंसेस के साथ, हालत के साथ, समय जगह और हालत के साथ वो बदलता रहेगा, ये चीज़ें वो फिक्स नहीं होगा। ओके, सो वी हैव डन दिस 2 टॉपिक्स। हमने पॉवर्टी लाइन क्या है, पीपल बिलो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनका फीचर्स क्या है वो देखा, और पॉवर्टी क्या है उसको हमने डिफाइन किया। सो वी एंड दिस वीडियो हियर। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लेते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।